Okay, so good evening. Let's start today life processes. The chapter number 5 of class 10th biology. So far we have discussed heredity chapter as well as we have discussed our environment chapter. That weightage I've already informed you. Now let's talk about the weightage of life processes chapter. Approx 9 to 10 marks questions come from chapter life processes, one of the major chapter of biology. Want to tell you one change which has come through circular in CBSE. Earlier, uh, the total number of questions in a 10th board paper is 39. Total 39 questions were there, in which internal choices were there. But now, earlier there was a mixed questions like physics, chemistry, bio. There is a mixed question. MCQ. Section A will be MCQ. Section B was 2 marks question. Section C was 3 marks question. Then D of 5 marks and E of case studies. But now the changes has brought by CBSE in his latest circular, and they have uploaded the same kind of sample papers also in the website. So now the science paper is divided into 3 sections, that is section A, section B, and section C. Section A is having only biology question. It will be a set of question which have MCQ, assertion reason, 2 marks question, 3 marks question, 5 marks question, and 4 marks question. Section B will have chemistry question. Again, same MCQ, 1 marks question, assertion reason, 1 mark question, 2 marks question, 3 marks question, 5 marks question, and 4 marks questions. And section C comprises of physics. So it is easy for you also that whatever section you think that it is my uh, best section, or you are very good in that section, attempt that section first. So it is good for you students. Okay, let's start life processes chapter, which comprises 9 to 10 marks question usually come. It has some beautiful case studies as well, 5 marks questions as well. So first of all, you should know what is life process. The processes which sustain the life, which maintain the life, which is necessary. If a person is living, that processes are necessary. Like nutrition. Okay, nutrition means we are having food, respiration, excretion, and transportation. So these all are the process which maintain our life and which are important for our life. Without this, we are not able to sustain. And it is important for our growth, for our movement, for our repairment, and so many things. So life processes is the chapter which included all. So these are the essential activity performed by the living organism to stay alive. These are the activities which are performed by the organism to stay alive. So they help in growth, movement, repairing of the tissues, and so many other tasks. So, very first, there are different processes which we are going to study in this. Very first, we are going to study about what is nutrition. Okay. Then we are going to discuss the respiratory system, respiration. Then we are going to discuss about the circulatory system, also known as transportation. And the last one, we are going to discuss the excretory system. Okay, so let's start very first, that is nutrition. If somebody asks you what do you mean by nutrition, what do you think? कोई पूछे न्यूट्रिशन होता क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? व्हाट इज न्यूट्रिशन बताइए, क्या बताएंगे आप? न्यूट्रिशन इज व्हाट इनटेक ऑफ फूड एंड कंजप्शन ऑफ फूड इन योर बॉडी. न्यूट्रिशन मीन्स आप खाना खाते हैं
और खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है आपकी बॉडी में, एंड द मोड बाय यू आर टेकिंग, द वे यू आर टेकिंग फूड. Now, the nutrition is further divided into two types, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So, if I am talking about autotrophic, auto means self, trophic means food, means the organisms they are able to make their own food. They are comes under the category of autotrophic nutrition. If I talk about plants, these are the best example. Blue green algae, those are having chlorophyll. They are able to make their own food, and they are the one who are not dependent on others for their food requirements. They are able to make their own food by the process of photosynthesis. They comes under the category of autotrophic nutrition. Now, this is basically green plants. These are known as autotrophs. The plants, it comprises of plants. The plants, green plant basically, those who are able to make their own food by the process known as photosynthesis is known as autotrophs. Okay. अब हमने बात कर ली ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है. अब ऑटोट्रॉफ कैसे काम करेगा? तो द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब फोटोसिंथेसिस हो गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है. ठीक है. वी आर स्टडिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द वेरी जूनियर क्लासेस एंड ऑल, बट लेट्स डिस्कस वंस अगेन. Few raw materials are required in order to complete the process of photosynthesis. The raw materials are carbon dioxide and water. The water was being taken by the roots. Root absorb water from the ground, and carbon dioxide is taken by the stomata. We all know stomata is present on the upper surface of the leaf, and their major work is to exchange of gases. So plants take carbon dioxide and give oxygen. So the same way, the raw materials are carbon dioxide and water. Next is, what is the necessity? Without this, it is not possible. So in the presence of chlorophyll, so next thing which is required, that is chlorophyll. In the presence of chlorophyll and sunlight, because without sunlight, this process is not possible. सनलाइट इज रिक्वायर्ड. बिना सनलाइट के ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता. दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सनलाइट. सो सनलाइट इज इंपॉर्टेंट. So these is the presence. These are the presence and these are the raw material. And what product we are getting? We are getting glucose. The product which we are getting, that is glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. Other than that, we are getting oxygen, which is a byproduct of photosynthesis. So let's see what is the equation of photosynthesis, which can be asked in MCQ as well, which can be asked in 1 marks question as well. So CO2 plus H2O. This arrow sign shows कि इस direction में हो रही है. What is the direction of? In the presence of chlorophyll and sunlight. In the presence of chlorophyll and sunlight. I think it is not visible. Let me change this. In the presence of chlorophyll and sunlight. And what it will give? It will give C6H12O6 dot oxygen. आप इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस 6 पुट कर दीजिए सब जगह. So this is the balance equation of photosynthesis. Okay. Carbon dioxide plus water gives glucose and oxygen. Now इसमें एक major event होता है. That is known as photolysis of water. फोटोलिसिस मीन्स वाटर का टूटना. तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, लाइसिस मीन्स मैं बोल रही हूँ
इस टर्म को याद कर लीजिए। फोटोलाइसिस मीन्स जब भी लाइसिस किसी प्रोडक्ट से, किसी भी रिएक्शन से या किसी नेम से जुड़ जाता है, दैट मीन्स उसको बोलना होता है तोड़ना, मतलब वो चीज़ टूट जाती है। ठीक है, तो लाइसिस मीन्स तोड़ना। अब मैंने तोड़ा तो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है। क्या टूट रहा है? वाटर। और वाटर टूटेगा तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जो आती है, जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है फोटोसिंथेसिस में, दिस इज बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिडक्शन होता है, एंड थ्रू रिडक्शन वी आर गेटिंग ग्लूकोज। दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। किसी भी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन का जुड़ना अपन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ग्लूकोज एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल गिव ऑक्सीजन। क्लियर? सो दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इसमें। कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि ये सारे इवेंट जो है एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना प्रोसेस जो होते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट, जो एरिड प्लांट्स होते हैं, सुकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, वो क्या होता है, पूरे टाइम वो सनलाइट का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उन पे क्यूटिकल की परत होती है एंड ट्रांसपिरेशन वगैरह उनको रोकना होता है वाटर वे पे, बिकॉज वाटर स्कैर्सिटी इज देयर। तो वो अपना आधा प्रोसेस जो है वो रात में करते हैं। तो मॉर्निंग में वो अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, एंड नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अपना रात में करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इवेंट जो हैं, लाइक अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट पहला जो इवेंट है, ये जितने इवेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में हो। तो पहला इवेंट जो है, पहला इवेंट क्या है हमारा? पहला इवेंट है कि सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो गया। नाउ दिस क्लोरोफिल इज कन्वर्टिंग लाइट इनटू, मींस लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या इवेंट होते हैं? अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, उसके बाद में क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, इट इज द वर्क ऑफ दिस, एंड देन इट हैज टू कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी। दिस केमिकल एनर्जी फर्दर यूज्ड फॉर photolysis of water, by which we will get oxygen, and reduction of carbon dioxide, by which we'll get glucose. So these are the events which usually happen. This is the event which happened during the photosynthesis, but it is not necessary it occurs in the same sequence. ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सपेरिमेंट बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ KOH, आप लोग देखेंगे एक्टिविटी में एक है। और दूसरा इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो हमारे स्टोमेटा है उसका जनरल स्ट्रक्चर और जनरल इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है। तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टोमेटा कैसे होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, है ना? दिस इज पोर, स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर। ठीक है, और बाहर जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, दीज आर द गार्ड सेल, एंड उसके बाहर जो आते हैं दैट इज नोन एज एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यूजुअली बीन आस्क्ड कि स्टोमेटा के ओपन और क्लोज के स्ट्रक्चर बनाओ, तो दिस इज ओपन। यहाँ जब देखिए ये देखिए ये हाथ है, सपोज दीज आर द स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स। इफ आई एम कीपिंग इट लाइक दिस दैट मीन्स स्टोमेटा इज क्लोज, बट इफ आई एम पुटिंग इट लाइक दिस दैट मीन्स स्टोमेटा इज ओपन। सो ये है ओपन और ये है क्लोज और ये है ओपन, ये है क्लोज, ये है ओपन, ये है क्लोज, ये है ओपन।
ठीक है, तो यहाँ अभी जो मैंने बनाया है दैट इज क्लोज, सॉरी ओपन, ठीक है। और अब मैं आपको क्लोज बताती हूँ। तो क्लोज में आपको ये जो स्पेस है ना बीच वाली, वो नहीं दिखानी है, आपको सीधे ऐसे बताना है, दिस इज क्लोज स्टोमेटा, और ये एपिडर्मल सेल हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द क्लोज स्टोमेटा, ये देखिए दिस इज क्लोज, ठीक है, और ये जो है वो ओपन है। दिस इज द डिफरेंस, क्लोज एंड ओपन। Stomatal pore plays important role in exchange of gases. Now what occurs, क्या चीज है जो स्टोमेटल के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है? दिस इज वाटर। सो वाटर जो होता है, जब वाटर इनटेक, जब वाटर इन सेल्स के अंदर जाता है, इट बिकम्स टर्जिड। टर्जिड मीन्स टाइट हो जाते हैं, जैसे ही टाइट होते हैं तो स्टोमेटा विल ओपन, और जैसे ही वाटर इसमें से बाहर निकलता है तो ये बन जाते हैं फ्लैसिड, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लैसिड। दो टर्म बता रही हूँ मैं आपको, टर्जिड जब ओपन होते हैं और फ्लैसिड जब क्लोज होते हैं, ठीक है। तो टर्जिड व्हेन ओपन एंड क्लोज होते वक्त फ्लैसिड, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक होता है पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन है वो भी कंट्रोल करता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोजिंग को। पोटेशियम आयन अंदर गए, स्टोमेटा ओपन हो गया, पोटेशियम आयन बाहर गए, स्टोमेटा क्लोज हो गया। So these are the two factors, water and potassium ion, which are responsible for opening and closing of stomata. अब हम चलते हैं आगे एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट बहुत सीधा सा है, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। अब सीधा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि एक जार है, एक पौधा है हमने लिया, ठीक है, वी हैव टेकन वन प्लांट, एक प्लांट ले रखा है, और उस प्लांट को हमने एक बेल जार से ढक रखा है, टू सेट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट ये रहा, और दूसरा प्लांट है उसको भी हमने क्या कर रखा है, बेल जार से क्लोज कर रखा है। अब इस प्लांट में मैं देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी पानी की बूंदे देख बोल सकते हैं, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे जो रख रखा है वहां पे एक प्लेट में मैंने लिख रखा है KOH। क्या रख रखा है? KOH। अब हम सबको पता है कि हमारा जो ग्लूकोज बना वो पूरा ग्लूकोज तो प्लांट यूज नहीं करता है, हार्डली 1 or 2% प्लांट इज यूजिंग, रेस्ट ग्लूकोज सेव्ड इन आवर बॉडी, सेव्ड इन प्लांट इन द टर्म्स ऑफ स्टार्च। तो सेव तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, बट बनता क्या है? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज प्लांट 2 से 3% यूज करते हैं, बाकी जो बचता है वो सब क्या करते हैं? प्लांट स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए ग्लूकोज इज टू कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ठीक है। तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च का टेस्ट हमें पता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च का। तो आफ्टर पुटिंग आयोडीन, स्टार्च हमें कैसा रंग देता है? आयोडीन डाली, ड्रॉप डाली स्टार्च में, तो हमें मिलेगा ब्लैक पर्पल कलर या पर्पल ब्लैक कलर, दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इट इज द स्टेच ऑफ द, अब यहाँ मैंने इसको दिखा और इसकी लीफ को मैंने चेक किया और मुझे स्टार्च मैंने टेस्ट किया तो ये आया पॉजिटिव, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ मैंने जब लीफ का टेस्ट किया तो मेरे को कोई कलर नहीं दिखा। What is the reason? Because of KOH. KOH is an absorber of CO2. जब CO2 प्लांट को मिलेगी ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होगा? और फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो कन्वर्जन स्टार्च में नहीं होगा, और स्टार्च में नहीं होगा तो हमारा आयोडीन टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव। सो दिस इज द वेरी कॉमन question and very common case study based question usually being asked in exam. So what is the work of KOH? Absorption of carbon dioxide. So this is all about autotrophic nutrition. अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition means those who are dependent on others for food requirement. ठीक है, हेट्रोट्रोप मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते पर वो अब दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, दे डिपेंड ऑन अदर्स, सो दीज आर नोन एज heterotrophs. Heterotrophs, what do we call it? The organism which depends on other for their food requirements, it's known as, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई, अभी ठीक कर देते, this is known as heterotrophs, ठीक है।
So this is known as heterotrophs. The organism who depends on others for their food requirements is known as heterotrophs, and the process is known as heterotropic nutrition. Okay. अब heterotropic nutrition कितने तरह का हो सकता है? तो हम बात करते हैं, it can be a holozoic nutrition. और क्या हो सकता है? होलोजोइक के अलावा और क्या हो सकता है बताइए? इट कैन बी अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट कैन बी अ सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, 3 तरीके के हो सकते हैं, नोट कर लीजिए. एक होता है होलोजोइक, एक होता है पैरासिटिक, और एक होता है सेप्रोट्रोपिक. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. अब हम सबसे पहले देखते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि होलोजोइक हम आखिरी में लेंगे, इट इज द बिगेस्ट वन. तो जब हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स जो लिव इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फीकल मैटर हुआ, ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑल, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे जो फीड करता है, ठीक है, एंड दे यूज टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू simple material, inorganic material, so that it can easily replenish the soil as well, or it can clean the environment as well. So basically bacteria, mushrooms, these are the saprotrophs. ठीक है. Now come to parasitic nutrition. Parasites means कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे अपना फूड लेता है. तो जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, और इसको बोलते हैं हम पैरासाइट. अब पैरासाइट जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एंडो एंड एक्टो. एंडो की बात करें हम तो जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टो की बात करें तो जो बॉडी के बाहर रहते हैं. ठीक है, अब एक्टो पैरासाइट का बहुत सिंपल एग्जांपल है लीच. क्या करती है लीच? ब्लड सक करती है. तो सपोज लीच किसी के लग गई है ना, एनी ऑर्गेनिज्म, सो वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? होस्ट. And leech is an ectoparasite who lives outside the body. ठीक है. अब टर्माइट्स जो होती है वो भी एक्टोपैरासाइट होती है. आपकी लाइस बोलती है ना, जुएं, सिर पे जुएं हो जाती है, तो लाइस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट बिकॉज दे आर लिविंग ऑन अदर एनिमल्स, है ना, आउटसाइड द बॉडी, एंड दे आर टेकिंग फूड, दे आर इन टेकिंग फूड फ्रॉम देम. सो दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मीन्स बॉडी के अंदर रहता है. टीनिया सोलियम, एस्केरिस, these are the example of endoparasite. क्या रहता है? बॉडी के अंदर रहता है और हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है तो वो सक करता है उस जूस को. ठीक है, तो these are the endoparasite. क्लियर? आगे बढ़े. चलिए, अब हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे, जो यूजुअली एनिमल्स में देखा जाता है. किसमें देखा जाता है? एनिमल्स में. होलोजोइक न्यूट्रिशन. चलिए शुरू करते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स हम कोई खाना जो है वो सॉलिड रूप में इनटेक करते हैं, सॉलिड तरीके से लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं और फिर उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड, ठीक है, वो फूड जो है दैट इज द फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म. लाइक वी आर ईटिंग chapati is a solid form. We are taking food inside, we are masticating it, and then digestion occur, and whatever undigested food is there we are taking out from the body. So this is the holozoic nutrition. Usually animals follow the holozoic nutrition. So ingestion of solid food, that is known as holozoic nutrition. Now there are few steps of holozoic nutrition. Very first step is ingestion. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, हमने फूड लिया, फूड लेने के बाद क्या होगा? डाइजेशन. सो इंजेशन ऑफ फूड, देन डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टेड फूड हो गया, उसके बाद में उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन के बाद उस जो एब्जॉर्ब हमें एनर्जी मिली है उस फूड से, उससे हम क्या करेंगे? उसको हमारी बॉडी में यूज करेंगे. दैट इज नोन एज assimilation. And whatever undigested food is there, that is known as egestion. To remove out the undigested food from the body is known as egestion.
So there are 5 steps, again I am repeating, of holozoic nutrition. 5 step हो गए. First step is ingestion, taking or intake of food. After taking food, there is a digestion of food. हम digest करते हैं food. Okay. Then there is absorption of food. If food is being digested, then it has to be absorbed in our body. So the third step is absorption of food. Then after absorption, हमने food absorb किया, then we are going to use it for different activities of our body, for different purposes of our body. Then it is known as assimilation of food. And whatever the waste thing is there that has to repel out of the body, it is known as egestion of food. Okay, so I hope it is clear to everyone. Now let's start digestion or nutrition in amoeba. Very simple nutrition, that is nutrition in amoeba. Amoeba, we all know what is amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Okay, unicellular organism means one cell is present and one cell is there in the body to do all the work. That is unicellular organism. Okay, irregular in shape, there is no proper shape of amoeba. And how does it take nutrition? Usually question किसका आता है? Diagrammatically present how amoeba takes food. Then you have to label each and everything in the diagram in the explanatory manner. Okay, let's start how nutrition occur in amoeba. I have made one amoeba which is irregular in shape. Now this is nucleus. Okay, and this is what? Cell membrane. Inside this there is cytoplasm. So this is amoeba. Now what happened? It usually found in aquatic area. Now what happened? Whenever any food particle comes near the amoeba, what will happen? Suppose this is a food particle. A food particle आ गया amoeba के पास में. So then what will happen? Amoeba will start making false feet, which is also known as pseudopodia, to surround the food come next to it. क्या किया उसने? ये देखो, ये बनाया उसने फॉल्स फीट. क्या बनाए? फॉल्स फीट. और ये है उसका न्यूट्रिशन. ये क्या बन गए उसके? फॉल्स फीट, जो सराउंड कर रहे हैं किसको? फूड पार्टिकल. दीज आर द सराउंडिंग. इसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया एंड अनदर नेम इज फॉल्स फीट. फॉल्स फीट भी लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. वैसे टेक्निकल नेम है इसका स्यूडोपोडिया. उसने ऐसा किया, कप जैसा स्ट्रक्चर बनाया. अब क्या होगा? कप जैसा स्ट्रक्चर बनाते ही क्या करेगा? ये इसको अपने उसमें ले लेगा. ये कप आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? जुड़ गया. जैसे ही जुड़ा, इट जॉइंट, इट टेक्स फूड पार्टिकल इनसाइड. अब ये तो न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है. नाउ दिस फूड पार्टिकल comes under the vacuole which is known as food vacuole. Now digestion will occur inside the food vacuole. Few enzymes and all it start working and digest the food particle. अब food particle को जैसे ही वो digest करेंगे, क्या होगा? The digested material will absorb by the body and whatever the undigested material is there, it will remain over here only. So this is undigested material. और ये जो यहाँ पे फूड वैक्यूल है, डाइजेशन अकर. ठीक है, ठीक है, यहाँ हुआ. अब अगेन व्हाट विल हैपन? द अनडाइजेस्टेड मटेरियल कम टू द पेरिफेरी और यू कैन से एजेस ऑफ अमीबा. यहाँ एजेस पे आया, देखिए ध्यान से. कम टू द पेरिफेरी और एजेस ऑफ अमीबा, और यहाँ से क्या होगा? बस्ट आउट of the amoebas. So ये जो undigested material है वो क्या हुआ? burst on edges. So this is how nutrition occur in amoeba. amoeba आया, amoeba की जनरल स्ट्रक्चर है, फूड पार्टिकल आया, फॉल्स फीट बनाए, फॉल्स फीट के बाद they have engulfed the food particle
and it comes under the food vacuole where digestion occur. Undigested remain in that vacuole only. It reaches toward the edges of amoeba and it bursts at the edge of amoeba. So this is how digestion occur in amoeba. Okay, usually a diagram based question come. So this is important. Now let's start the human digestive system afterwards. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, अब हम बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि वो कैसे काम करता है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डाइजेशन है दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग एंड विच वी आर स्टडिंग फ्रॉम द वेरी जूनियर क्लासेस इफ आई वुड से. हम बहुत टाइम से ये चीज़ पढ़ रहे हैं पर अब इसमें थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव से करें. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम खाना खाते हैं, है ना. मैंने खाना खाया, वी आर डूइंग होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम होलोजोइक सॉलिड फूड इनटेक कर रहे हैं. अब जो फूड का डाइजेशन है इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ ओनली. इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ ओनली. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो लेट्स मेक अ ब्यूटिफुल स्केच ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, आई ट्राई टू मेक. आप बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया. दिस इज माउथ. ठीक है, माउथ से हमने खाना लिया. चलो पहले मैं बना ही देती हूँ फिर आपको बताऊंगी. ठीक है, चलिए. तो दिस इज माउथ. ठीक है, यहाँ से हमने फूड क्या किया, इनटेक किया. जैसे फूड इनटेक किया कहाँ आया, बकल कैविटी में आएगा. बकल कैविटी, दिस इज द स्पेस ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर हमारे क्या है, टीथ है. तो सबसे पहले मैकेनिकल जो डाइजेशन होगा फूड का वो टीथ के थ्रू होगा. क्यों, टीथ क्या काम करते हैं, चुइंग का. चू करेंगे, चू करके द सॉलिड फूड विच इज means they are in larger size that has to be converted into smaller size. Why? Because if the things are come in smaller size, छोटा साइज हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड ऑन विच एंजाइम्स कैन वर्क प्रॉपरली. ठीक है, तो हमने किया पहले दांत से क्या हुआ, उसको मेस्टिगेशन विच इज नोन एज मेस्टिगेशन. दांत से तोड़ना, दांत से चबाना, इट इज नोन एज मेस्टिकेशन. नाउ वी ऑल नो वी हैव 32 टीथ्स. ओके, व्हाट काइंड ऑफ टीथ्स वी आर हैविंग, we have incisors, canines, premolars and molars. incisors क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं. ठीक है, हम बाइट करते हैं कोई चीज वो इंसीजर के थ्रू करते हैं, फ्रंट टीथ. उसके पास वाले जो होते हैं थोड़े चीजल शेप के होते हैं विच आर मोर प्रोमिनेंट इन नॉन वेजिटेरियन एंड लेस प्रोमिनेंट इन वेजिटेरियन बिकॉज दे हैव टू चीजल द थिंग्स. चीज़ों को टीयर करने के लिए काम आते हैं, फॉर टीयरिंग द फूड मटीरियल्स. सो these are known as canines which are more prominent in non-vegetarians, and then premolar for chewing, and the molars are also for chewing of the food. Okay, so this is 32 teeth are there which are present. Now other than that there is a tongue in our mouth. buccal cavity में क्या होती है, tongue भी होती है. tongue is what, it's a muscle. Okay, and it has so many taste bud over it. तो टेस्ट बस से हमें टेस्ट का पता पड़ता है. कैसे पता पड़ता है, सबसे फ्रंट वाला जो होता है वो स्वीटनेस का होता है, देन किसका होता है, सॉल्टी, देन उसके पीछे आता है सॉर, एंड द लास्ट वन इज द बिटर वन. तो क्या क्या हुआ, स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड द बिटर वन. तो ये हमारी टीथ के, ये हमारी टंग के जो टेस्ट बर्ड है जिससे हमें टेस्ट का पता पड़ता है. अब आओ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो बकल कैविटी और माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड. हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि एकदम मुंह में पानी आ गया, वो किसके थ्रू होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या देती है, इट सीक्रेट सलाइवा. और सलाइवा क्या काम करता है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू
स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या एंजाइम होता है, सलाइवरी amylase. So this basically work on starch and it converts starch into glucose. ठीक है, it converts starch into glucose and the salivary amylase basically it work on starch and it convert into glucose, है ना। तो पहला जो डाइजेशन हमारा जो शुरू हुआ दैट स्टार्टेड फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। अब उसके बाद में क्या होगा, माउथ में खाना आया, यहाँ पे सलाइवरी ने काम किया, और उसके बाद वो जो आता है दैट इज नोन एज फूड पाइप। व्हाट डू वी कॉल इट, फूड पाइप। अब ये फूड पाइप को हम और क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं हम, ईसोफेगस। नाउ देयर इज नो डाइजेशन अकर इन ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये जो आपका फूड पाइप है which is also known as esophagus, there is no digestion occur in esophagus. esophagus में कोई digestion नहीं होता है, ये just एक transit का काम करता है। माउथ में जो salivary amylase that has to mix with the food, okay, first step of digestion occur over here, और क्या होगा, ये फूड को वहां से लाके स्टमक में ले आएगा, ये काम करेगा। ये क्या किया उसने, वहां से माउथ से लाया और स्टमक में लेके चला गया। ओके, तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक, यहाँ से फूड निकल के कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। अब हाउ द फूड इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट इज बाय द मूवमेंट नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे खिसक के केचुआ चलता है, देखा अर्थवर्म को चलते हुए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वही है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर, तो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है विच हेल्प टू मूव फूड पार्टिकल फ्रॉम माउथ टू स्टमक, है ना। तो माउथ से स्टमक में लाने के लिए हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किया। अब आया हमारा स्टमक, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज स्टमक। अब स्टमक में डाइजेशन कैसा होता है, स्टमक में देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टमक कंटेन HCl, so the environment of stomach is what, acidic, so it contain HCl, okay, so that is why the environment of stomach is acidic. Other than that it has mucus and one more exam that is known as pepsin। ठीक है, वापस बताती हूँ, स्टमक में 3 चीजें होती है। कौन कौन सी चीज होती है, देखो ध्यान से, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, और तीनों के काम अलग अलग है। What HCl does, it maintains the acidic environment of stomach, okay। म्यूकस क्या करता है, इट्स अ लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग होती है, ये स्टमक है, इसकी लाइनिंग जो है वो म्यूकस से बनी हुई होगी, ये इससे। अब ये क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग जो म्यूकस से होगी, इट डू नॉट अलाउ दैट HCl शुड वर्क ऑन इट, है ना। HCl इस पे काम नहीं कर सकता, वो उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड HCl इज वन मोर थिंग इज देयर, HCl जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिव करता है। अब एक्टिव कैसे करता है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। तो पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव करने के लिए HCl हेल्प करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है, और ये पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किसमें चेंज करता है, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड, ठीक है। तो ये डाइजेशन इसमें होता है। अब क्या हुआ, HCl क्या कर रहा है, एसिडिक इन्वायरमेंट बना रहा है, और एक और काम कर रहा है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके पेप्सिन में चेंज कर रहा है, और म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक लाइनिंग को। बट सम टाइम व्हेनेवर एसिडिटी अकर मींस हमारे स्टमक में जब एसिड रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, म्यूकस लाइन भी अफेक्ट होती है, और उसी को बोलते हैं अल्सर्स। अल्सर्स कैसे,
ये HCl जो है म्यूकस जो हमारे स्टमक की वॉल्स है उस पर अफेक्ट करता है और उससे हो जाते हैं अल्सर्स. तो दिस इज द रीजन वाई पीपल यूज टू से eat something, don't remain empty stomach. Because of this, HCl, the acidity of stomach will increases and eventually it will hurt the walls of stomach. So this is next. Now अब stomach तक तो हो गया. अब stomach के बाद important part आता है that is known as small intestine. इसके बाद कहाँ पहुंचा हमारा खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब एक बार हो गया, ठीक है. अब हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन पे. अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होता है. तो वेरी सिंपल थिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, इसको वापस बताते हैं. ये आ गया अपना स्टमक, ठीक है. और ये है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बीच में बहुत फोल्ड होके पड़ी रहती है. ये हमारा लिवर है और दीज आर द पेनक्रियास. अब क्या होती है, बहुत फोल्ड होके अंदर पड़ी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन. एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें. स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोर्स की होती है दैट इज बिगर, लंबी होती है ना, दैट इज लॉन्गर आई वुड से. बट जो कार्निवोर्स की है दैट इज not that bigger but smaller, means shorter. Okay, why is it so? Because herbivores क्या करते हैं? प्लांट्स, यस, वो प्लांट्स इनटेक करते हैं. अब प्लांट्स किस में होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट. सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which take lot of time to digest. So that is why the small intestine or alimentary canal जिसे हम कहते हैं that is bigger, longer in terms of herbivores, but when it comes for carnivores it is shorter. So ये क्वेश्चन पूछते हैं किसमें ज़्यादा होती है, किसमें लंबी होती है, किसमें छोटी होती है, जिसमें लॉन्गर होती है. तो दिस इज द रीजन. रीजन क्या है? बिकॉज सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. ओके, सो दिस इज द रीजन. अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बहुत तरीके के जूसेस वगैरह आते हैं इधर उधर से. पहला जूस हम पढ़ते हैं लिवर. ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज लिवर. लिवर में क्या होता है? बाइल जूस बनता है. और बाइल जूस किस में प्रेजेंट होता है? बताइए. गॉल ब्लैडर में. ठीक है, गॉल ब्लैडर एक छोटी सी जगह होती है. अभी आप लोग सुनते भी होंगे कि उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, उसमें स्टोन आ गए, है ना. और उसके बाद उसको बोलते हैं कि ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खानी. वो रीजन यही है. लिवर क्या करेगा? बाइल जूस को इंटेस्टाइन में सिक्रीट करेगा. ठीक है, और इंटेस्टाइन में क्या होगा? बाइल जूस का क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मीन्स फैट्स आर प्रेजेंट इन बिग ग्लोब्यूल्स. बड़े बड़े गोले प्रेजेंट होते हैं फ्लैट्स के. इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम कैन इजीली वर्क ऑन दैट. उसमें अमाइलेज तभी तो काम करेगा. जब तक कि आप ये हाँ, जब तक कि आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे छोटे पोर्शन में, तब तक वो काम नहीं करेगा. So it emulsify the fat. Okay, it converts into big globules in the smaller one. Smaller one globules में उसको change करता है so that the work can be easily done on that. Okay, दूसरा enzyme उस पर काम करे. तो उसका काम क्या होता है बाइल जूस का? emulsification of fat. अब पेनक्रियास, पेनक्रियास के जूस भी इसमें जाते हैं. ठीक है, तो उसमें होते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज. ठीक है, अब ये तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और तीनों को बहुत याद करना बहुत इजी है. ठीक है, तो पेप्सिन तो हमने पहले पढ़ लिया था. इसमें होता है एक लाइपेज भी. ठीक है, अब ट्रिप्सिन जो काम करता है दैट वर्क्स ऑन प्रोटीन्स.
तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो ट्रिप्सिन के थ्रू होता है. इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. अमाइलेज और लाइपेज क्या करते हैं? फैट्स पे काम करते हैं. फैट्स पे काम करेंगे तो उसको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज करेंगे. और हमारा जो लाइपेज होता है वो बेसिकली काम जो किस पे करता है, वो उसी पे करता है, स्टार्च पे. इट कन्वर्ट स्टार्च ऑल्सो इन फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. सो ये जो चीज़ है ये भी हमें आती है. और तो दीज ऑल थिंग्स कम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है हमारा कंप्लीट होता है. तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज. ठीक है, अमाइलेज किस पे काम करेगा? स्टार्च पे. ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे. और लाइपेज करेगा फैट्स पे काम. तो हमें जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट प्रोटीन इज कन्वर्टिंग इनटू अमाइनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, डाइजेस्ट हुए, स्मॉलर यूनिट्स में आ गए. ठीक है, फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, है ना. और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल शुगर. ग्लूकोज भी बोल सकते हो और सिंपल शुगर भी बोल सकते हो. तो ये जो है हमारा फाइनल डाइजेशन का प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, एंड कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज और यू कैन से सिंपल शुगर. ये हमारा क्या हो जाता है? डाइजेशन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया मीन्स हमने इंजेशन कर दिया, डाइजेशन कर दिया. थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था अब्जॉर्प्शन. अब अब्जॉर्प्शन क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ऑल्सो अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. वो भी किस में प्रेजेंट होता है? इसमें. किसके थ्रू होता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ विलाई. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे एक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं इस तरीके से. और these projections are known as villi. What they do? They increase the surface area for absorption and they are rich in blood supply. बहुत capillaries होती हैं, they are very rich in blood supply. So what they do? They absorb the digested things and then they circulate to the blood. Okay, so because of villi present in small intestine, the absorption processes also occur in small intestine and digestion is completed in the small intestine. अब absorption हो गया, then afterward assimilation. Assimilation means we are using this digested food in various activity like walking, dancing, moving and so many things. Okay, अब बचा undigested food. अब उसके बाद जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. नाउ मेक अ नोट, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. तो आपकी इसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है. व्हाट हैपन इन लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका अब्जॉर्प्शन होता है. सो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर that is occur in large intestine. There is no digestion occur in large intestine. And whatever after absorption of water, it will come to rectum and through anus it moves out of the body. अब एनस से बाहर निकलने के लिए और उसके लिए स्पिंक्टर्स काम करते हैं. इंस्पेक्टर्स मीन्स प्रेशर पड़ता है तो दे विल बिकम ओपन एंड विदाउट प्रेशर दे विल बिकम क्लोज. ओके, so this is all about digestion. Thank you. तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. अब आगे चले रेस्पिरेशन के लिए.
Okay, so next is respiration. Let's start respiration. अब सबसे पहले हमें respiration, और रेस्पिरेशन यूजुअली पीपल से कि हाँ मैंने ऑक्सीजन अंदर ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, दैट इज रेस्पिरेशन. नो, दिस इज द मेजर मिस्टेक. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट यू हैव, दिस शुड बी इन योर माइंड कि रेस्पिरेशन, देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. Okay, breathing is just intake of oxygen inside and taking out carbon dioxide out. Okay, so intake of oxygen and taking out carbon dioxide is breathing. But respiration means getting energy. Food को oxidize करना, ठीक है? The digested food is there and you are going to oxidize it. Okay, and then you are getting energy through it. This is known as respiration. So there is a basic difference in breathing and respiration. I think you all are understood this. Okay, breathing is basically a mechanical process, but respiration is mechanical plus both chemical process. So usually question ask what is the difference between breathing and respiration. So one is related to only intake of oxygen and giving carbon dioxide, and this is a completely mechanical process. But when it comes for respiration means oxidation of food to give energy to our body, and it is a chemical plus mechanical both process. So this is the basic difference in respiration. Now you should know what are the types of respiration. So if we talk about the types of respiration, basically it is of two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so aerobic respiration, if I am talk about, as the name indicate, in the presence of air. Air presence hui, in the presence of air, if the food is being converted and giving the energy, है ना, so then it is known as aerobic respiration. Anaerobic respiration means when oxygen is not present, when air is not present, then it is known as anaerobic respiration. एयर है ही नहीं और विदाउट इसके भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, तो उसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, सो देन इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसकी एक जनरल इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ. ग्लूकोज हमारा डाइजेस्टेड फूड है, उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट वी आर गेटिंग एनर्जी, converting into carbon dioxide and some amount of water. So this is the general reaction of aerobic respiration. Aerobic respiration gives more amount of energy. It gives approx 38 ATP. अब वही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ATP? ATP इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल. अपनी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है ना, वो दैट इज ATP. ATP इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा. सो दिस इज नोन एज, सो ग्लूकोज, ऑक्सीजन काम किया, एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, एयर इज नॉट प्रेजेंट, फिर भी हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वहां पे हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखने की है, और ये डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो उसको ध्यान से देखिएगा. हाउ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर. अब इसमें एक चीज आपकी जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. ठीक है, विच इज कॉमन. ये होता है साइटोप्लाज्म में और ये कॉमन प्रोसेस है, ये सब में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये फर्स्ट स्टेप इज कॉमन. ग्लूकोज इज 6 कार्बन स्ट्रक्चर एंड पायरुवेट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर. तो 6 कार्बन स्ट्रक्चर 3 कार्बन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, पर इसमें इसके 2 मोल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं. अब इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा.
यहाँ यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, हमें लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिलेगी, और हमारे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा इथेनॉल। ठीक है। अब एक कंडीशन आती है व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है, बट द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड बाय अस इट इज नॉट प्रेजेंट। तो उस टाइम जो हमारा होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा उसमें, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी आर गेटिंग दैट इज वेरी लेस। तो द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी विच वी आर गेटिंग, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग व्हेन देयर इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उसमें दो केस होते हैं। इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, कंप्लीटली नॉट प्रेजेंट, व्हेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, very less amount of energy, and ethanol will be getting. But if energy is less, means oxygen is less, then the product will be lactic acid. अब ये किस कंडीशन में होता है, when we are doing heavy physical exercise, so our body require more amount of oxygen. अब वो पूरी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, मसल्स हमारी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ब्लड उतना फ्लो नहीं कर पाता, ऑक्सीजन को इतनी जगह नहीं पहुंचा पाता। तो बिकॉज ऑफ दिस there is an accumulation of lactic acid, and because of this we face cramps during heavy physical exercise, and when we do some icing and all, then the cramps will be resolved. Okay, so this is the reason why cramps occur. अब एक और क्वेश्चन आता है यूजुअली, तो एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in mitochondria and anaerobic respiration occur in cytoplasm. Okay, what is the place, what is the place where aerobic and anaerobic respiration occur? So aerobic respiration occur in mitochondria and anaerobic respiration occur in cytoplasm. So this is the basic difference. ओके, ये तो हमें मिलेगा। अब हम आते हैं आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आइए बढ़ते हैं आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो है वो उनकी ब्रीदिंग रेट कम होती है, एक्वेटिक की ज़्यादा होती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर टेकिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दी पॉन्ड। सो जनरल क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग रेट कम क्यों होती है, एक्वेटिक की ज़्यादा होती है, बिकॉज दे टेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ओके, एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस। सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज द रीजन। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हम समझते हैं एक एक चीज क्या कह रहा है वो। ओके, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ डाइजेशन में माउथ से था, इसमें है नोज से। सो दिस इज नोज, और नोज में जो छेद है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। सो दिस इज नोज एंड दिस इज नोन एज nostrils. Okay, inside nose this is nasal cavity. तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के बाद में क्या बनेगा, व्हाट विल वी हैव, नेजल कैविटी के बाद में आएगा हमारा ट्रेकिया विच इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। दोनों टर्म यूज कर सकते हैं बट टेक्निकल टर्म इज ट्रेकिया। अब विंड पाइप आया, विंड पाइप डिवाइड होता है विच इज नोन एज ब्रोंकस। ओके,
What do we call it? Bronchus. Now this bronchus is further divided into several branches, which is known as bronchioles. Okay, and this bronchiole will reach towards the balloon-like structure. And I think everybody is aware what is balloon-like structure? Lungs. Okay, now there is a dome-like or muscular platform is also present, which is known as diaphragm. Okay, inside this there is small bubble structures are present, which is known as alveoli. ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं. नोज, एयर अंदर ली, ठीक है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर आई, नेजल कैविटी में पहुंची. नेजल कैविटी में कहाँ आई? कहाँ से? ट्रेकिया में आई. ट्रेकिया से आई ब्रोंकस में, ब्रोंकस से आई ब्रोंक्यूल्स में, एंड देन इट कम्स टू लंग्स. So site of exchange of oxygen and carbon dioxide is alveoli. Questions आता है, what is the site of exchange of gases? So that is alveoli. And these are the smallest structure. एक balloon जैसे छोटे छोटे structure होते हैं which is responsible for exchange of gases. एक gas exchange यही होती है. What is the reason? Because they have rich supply of blood vessels. तो क्या होगा? Exchange of the gases, carbon dioxide बाहर जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के साथ क्लब करेगी और फिर बॉडी में दूसरी जगह जाएगी. अब इसमें मैकेनिज्म समझना वो बहुत ज़रूरी है. एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वी हैव कार्टिलेजेस, ओके, इन द ट्रेकिया. ट्रेकिया में क्या होता है? कार्टिलेज होता है. क्यों प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो वर्ड यूज करते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वो क्या करती है? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है. मीन्स हमारा जो लंग्स है कंप्लीट हम ब्रीदिंग कर लेते हैं ना, इन एंड आउट वाली, तो भी कुछ अमाउंट में एयर इसमें प्रेजेंट रहती है, विच इज नोन एज अ रेजिडियल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं उसको? रेजिडियल वॉल्यूम. और वो क्यों प्रेजेंट होता है? कोई चीज में से पूरी पानी हवा निकाल दो कि पिचक जाएगी, और ये पिचक गया तो हम भी पिचक जाएंगे, तो हमें नहीं करना है वो, ठीक है. सो रेजिडियल वॉल्यूम शुड बी देयर. रेजिडियल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है ना. रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहेगी, और वो प्रेजेंट रहना जरूरी है, नहीं तो लंग्स क्या करेंगे? कोलैप्स कर जाएंगे. वही काम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी करती है. इट डज नॉट अलाउ दैट ट्रेकिया शुड कोलैप्स, है ना. जब कभी मेडिटेशन करते हैं तो हम सांस रोकते हैं, तो उसमें ट्रेकिया कोलैप्स हो सकती है, तो वो सब रोकने के लिए दिस इज व्हाट रिब्स ऑफ कार्टिलेज आर डूइंग. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारा जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, ठीक है. राइट लंग्स में 4 लोब्स होते हैं, है ना, और लेफ्ट लंग में 3 लोब्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड होता है उस टाइम उस तरफ हार्ट भी होता है, हार्ट को भी स्पेस देनी है टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है हमारा हार्ट. सो दैट इज वाई द लंग्स ऑफ लेफ्ट राइट इज लिटिल बिट बिगर एंड द लेफ्ट वन इज लिटिल स्मॉलर. अब मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? देखिए, जब हम इनहेल करते हैं चीज को, इनहेल ऑक्सीजन किया, तो ये जो हमारा डायफ्राम है, जो डोम शेप है, इट बिकम्स फ्लैट. अब जैसे ये फ्लैट होगा, व्हाट विल हैपन? लंग्स विल गेट द प्लेस टू एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, एंड रिब्स जो है हमारी वो आगे की तरफ आएंगे, इट मूव्स फॉरवर्ड. सो उससे क्या होगा? अंदर की तरफ प्रेशर कम और बाहर प्रेशर ज़्यादा. सो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. एंड ड्यूरिंग एक्सलेशन, ये मैंने इनहेलेशन बताया, ड्यूरिंग एक्सलेशन अगेन इट बिकम्स डोम शेप. एज एंड व्हेन इट बिकम्स डोम शेप, द लंग्स स्क्वीज एज इट एंड रिब्स कम्स टू इट्स प्लेस. जैसे स्क्वीज होगा, अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा, बाहर कम, तो एयर क्या होगी? अंदर से बाहर की तरफ जाएगी. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन. ओके, सो वंस अगेन क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर, हाउ डज इट अकर, कैसे होता है? तो वेरी सिंपल, यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट. हाउ यू विल मेक अ फ्लो चार्ट? ऑक्सीजन लिया, किस में आया? नोस्ट्रिल से. नोस्ट्रिल से क्या हुई? ऑक्सीजन ली. ऑक्सीजन लेने के बाद कहाँ आती है? नेक्स्ट टू ट्रेकिया.
ट्रेकिया से कहाँ, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, देन लंग्स, देन एल्वियोलाई. Then again you have to write the reverse of it. So usually flow diagram of this can be asked. अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इफ एक्सलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो हाउ डू यू गेट टू नो दैट इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम सबको पता है, इट इज थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो इट विल गिव अस मिल्की कलर. लाइम वाटर, चूने का पानी जो होता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, बट व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, इट बिकम्स मिल्की. व्हाई? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, so this is how we get to know that we are inhaling carbon dioxide by doing a lime water test. So this is respiratory system. I hope all of you understand. Thank you. Okay, so digestive system done, respiratory system done. Let's start transportation. Now transportation. Okay, अब transportation means सिंपल वर्ड में एक जगह से दूसरी चीज को पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं. हाउ डज इट अकर इन आवर बॉडी? यदि मुझे कोई चीज इधर से इधर पहुंचानी है तो देर इज अ मीडियम बाय विच आई कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, एंड द मीडियम इज नोन एज ब्लड. सो blood is also known as liquid connective tissue. So the movement of things from one place to another place in our body is known as transportation, and it is done by a system which is known as circulatory system. Okay, so if we talk about the circulatory system, means the movement of things in our body. Okay, whether it is a digested food, whether it is undigested food, whether it is oxygen, whether it is carbon dioxide, any other thing that has to be transported in our body through a circulatory system. And the major part of circulatory system if we talk about, it has heart, okay, then vessels and blood. Okay, basic part क्या है? It has heart, vessels and blood. Heart is a pumping organ, pump करता है blood को pressure से, लब डब लब डब लब डब. Okay, vessels vessels, and then there is a blood. So let's discuss it one by one. Let's start with the very first thing, that is blood. Okay, so blood is liquid connective tissue. It is the only connective tissue which is liquid. Okay, and it is comprises of cellular part and liquid part. इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सेल्यूलर पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है. अब इफ आई एम टॉक अबाउट अ सेल्यूलर पार्ट, तो बेसिकली इट हैज सेल्स, डिफरेंट सेल्स. आरबीसी which is known as red blood cells, WBC white blood cells and platelets. Liquid part which is also known as plasma. Okay, it contains water as well as few proteins and all, it is also present in plasma. Okay, RBC is the red blood cells, it is also known as erythrocyte. What do we call it? Erythrocytes. Other name is erythrocyte, and it has a special pigment which is known as hemoglobin. Because of this, the color of blood is red. And what is the work of hemoglobin? It bind with oxygen and it help in movement of oxygen. WBC white blood cells. Okay, what do we call it? बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि WBC को और क्या बोलते हैं.
ओके। अब WBC क्या करती है? इट इज द वेरी फर्स्ट सोल्जर ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से फाइट करने का काम WBC का है। एंड द प्लेटलेट्स, platelets is for blood clotting. It has a very important thing that is known as thrombin. Okay, this thrombin is present in platelets and basically it works for the clot formation. कहीं कुछ लग गया है, somebody is having a wound, blood will come out. If it is start moving from the body, ऐसे ही बहता रहेगा, it start flowing from it, eventually that person die. But you will see after some time there is a layer over it. So this is known as clotting of blood and which is done by the platelets. So blood clotting work and it is done by the thrombin which is present in this. This thrombin is converting into thromboblast and then fibrin is converting into fibroblast. And because of this, this is converting into blood clotting. So the major work of platelet is clotting of blood. The liquid part is plasma. Now the next part of or component of circulatory system is vessels. अब वेसल्स जो है वो भी अगेन 3 टाइप्स की होती है. इट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब मैं बात करती हूँ आर्टरीज की. आर्टरीज कैरीज oxygenated blood, means the blood which contain oxygen is carries in arteries. Veins carries deoxygenated blood. When it doesn't have oxygen, the blood becomes this. तो deoxygenated blood जो है वो veins में carry होता है. And इन दोनों के बीच में जो connections बनाता है that is capillaries. The connection between arteries and veins that is done by capillaries. They are very minute like a hair, है ना, जो हमारे hairs होते हैं वैसे. Now the arteries, the basic difference between arteries and veins that is important and usually asked in exam as well. So arteries carries oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, but exceptions are always there. When we talk about pulmonary artery, it carries deoxygenated blood and pulmonary vein carries oxygenated blood. This is the major difference. Okay. Other than that, the arteries are present deep inside our body. हमें दिखती नहीं है arteries, ठीक है, अंदर present होती है. But when we talk about veins, दिखती है, ये दिख रही है हमें थोड़ी छोटी. So these are the superficially, means they are present in they are present superficially in the body. So the arteries present deep inside and the veins are present superficial in the body. One another difference is the vein contains valves and artery doesn't have valves. Now there is a special feature if we talk about valves which is present in veins. What it does, it is just like a structure like this. ये walls present होते हैं veins के अंदर. These kind of walls present in veins. Okay. अब ये क्या करेगा? It doesn't allow the blood flow in wrong direction. हार्ट पंप होता है. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. पंप किया तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर के साथ जाता है. ओके, तो वो सर्कुलेट होता है. बट वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती है. तो जो ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इट डजंट अलाउ टू ब्लड टू बैक फ्लो. Okay, and because of this, these valves are present in the arteries which do not allow blood to backflow. So these are the major functions of arteries and vein and major structure which is present in arteries and vein. रोको अभी पानी पीऊंगी.